Good morning, students. Today, in continuation of the aromatic heterocycles, now we'll discuss the criteria of aromaticity in heterocyclic compounds. In this criteria of aromaticity, अलग-अलग टाइप के क्राइटेरियाज हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ बॉन्ड लेंथ जो है वो एक क्राइटेरिया शो करता है कि whether the compounds will show more aromaticity or they'll show lesser aromaticity. All carbon-carbon bonds in benzene are of equal bond length. जब हम बेंजीन को स्टडी करते हैं तो हम क्या स्टडी करते हैं कि जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 1.395 एंगस्ट्रॉम्स है, जो कि इन बिटवीन बॉन्ड लेंथ है किसके बीच में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो कि 1.54 एंगस्ट्रॉम्स है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो कि 1.43 एंगस्ट्रॉम्स है. Delocalization of pi electrons in benzene results all carbon carbon bond lengths values to be intermediate between the values of single and double bond lengths. तो ये जो delocalization of pi electrons है बेंजीन रिंग के अंतर्गत, इसी वजह से जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ बेंजीन में पाई जाती है वो किसके इन बिटवीन पाई जाती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इन बिटवीन पाई जाती है. Hence, aromatic compounds can be characterized having bond length values between कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड लेंथ वैल्यू है वो कभी भी ना तो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड के जैसी होती है ना ही पूरी तरह से डबल बॉन्ड की तरह होती है, क्योंकि वो हमेशा ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स जो है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं एंड उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है. Whereas in conjugated acyclic systems, for example in case of butadiene, the single and double bond lengths are alternate. The value of these bond length value is 1.34 angstroms. It is between the value, the example, if we take the example 1,3-butadiene, the bond length value 1.34 angstrom and that between carbon 2 and carbon 3 is having the value of 1.48 angstroms. In acyclic conjugated systems, the delocalization of pi electrons is not possible. Thus, it can be concluded that aromatic compounds have non-alternating bond lengths, while in non-aromatic compounds, alternate bond lengths are present. ये difference है किसके बीच में, एक aromatic compound के बीच में और एक non-aromatic compound के बीच में. तो aromatic compounds में तो क्या है, non-alternating bond lengths है, whereas non-aromatic compounds में alternate bond lengths present है, just because of the presence and absence of delocalization. In heterocyclic compounds, bond length of carbon heteroatom bond is generally less than that found in its saturated analog. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यदि heterocyclic compound है तो जो bond length है किसके बीच में, कार्बन और हेटेरोएटम बॉन्ड के बीच में, वो किससे कम है, अपने सैचुरेटेड एनालॉग के कंपैरिजन में. In 5-membered heterocyclic compounds such as pyrrole, furan, thiophene, etc., delocalization of pi electron takes place, but these heterocyclic compounds show appreciable degree of bond alternation. अगर 6-membered की बजाय हम 5-membered heterocyclic compounds को लेते हैं, जिनमें कि हम पायरॉल, फ्यूरान या थायोफीन का एग्जाम्पल लेंगे, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो है, परंतु ऐसे केस के कंपाउंड्स में यहाँ पर बॉन्ड ऑल्टरनेशन भी है. तो द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन इन 5-membered heterocyclic compounds is less than the 6-membered heterocyclic compounds. तो यदि हम 5-membered को 6-membered से कंपेयर करते हैं तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, परंतु फिर भी जो 5-membered कंपाउंड्स हैं उसमें कंपैरेटिवली
जो बॉन्ड ऑल्टरनेशन है वो अधिक है। तो अगर हम विशेष रूप से अब एग्जाम्पल्स लेके स्टडी करें तो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को यदि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक pyridine, there are 3 double bonds and each ring atom has a p orbital and the 6 electrons from the pi molecular orbitals. pyridine के केस में क्या है हमारे पास, pyridine की रिंग में p ऑर्बिटल्स हैं, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है pi molecular orbital में. The unshared electron pair on heteroatom, नाइट्रोजन जो हेट्रोएटम का अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, that is perpendicular to the ring and hence not involved in bonding. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हेट्रोएटम पर है नाइट्रोजन के केस में, pyridine के केस में जो कि नाइट्रोजन एटम है वो परपेंडिकुलर है और वो किस में इन्वॉल्व नहीं होता, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता. Therefore, the bond length in these heterocyclic compound lies between single and double bond lengths. So in case of monocyclic compounds, fairly high degree of cyclic delocalization causes carbon-carbon bond length values close to the value of benzene. So that means जो 6 membered heterocyclic compounds हैं, क्योंकि वहाँ पर high degree of cyclic delocalization है, इस वजह से bond alternation नहीं है, परंतु क्या है, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो इनकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है वो किसके नज़दीक आती है, बेंजीन के ज़्यादा नज़दीक आती है. फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ हेट्रोएटम रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द एरोमेटिक कैरेक्टर. दैट मीन्स यदि एक हेट्रोएटम एट प्रेजेंट है तो, और यदि एक से अधिक हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो एक से अधिक हेट्रोएटम की उपस्थिति क्या कर रही है, उसके एरोमेटिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रही है. क्यों, क्योंकि ऐसे केसेस में जो डीलोकलाइजेशन है वो थोड़ा हद तक डिस्टर्ब होगा और पार्शियल लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हेट्रोएटम के ऊपर हो जाएगा. तो इस वजह से जो उनका एरोमेटिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है. तो इस टेबल में हम जो वैल्यूज देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड्स की या डबल बॉन्ड्स की अलग अलग एटम्स के बीच में, कार्बन कार्बन एटम के बीच में है, कार्बन हेट्रो एटम्स के बीच में है, उनकी वैल्यूज यहाँ पर दी गई है. ऐसे ही हम डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं. जैसे हमारे पास 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन उसमें एक ही हेट्रो एटम प्रेजेंट है, या 2 हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 हेट्रो एटम्स में भी उनकी पोजीशन अलग अलग है, और इन पोजीशंस की वजह से जो उनकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं. अब अगर हम एक और कंपोनेंट को देखें या एक और कंपाउंड को देखें जो कि हमारा यहाँ 8th नंबर का कंपाउंड है, इन कंपाउंड से किस बात में अंतर है कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो 1 से लेके 7 तक हैं, इनमें एक हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है, 2 हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है, हेट्रो एटम्स की पोजीशन भी अलग अलग है, लेकिन ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, मोनोसाइक्लिक नेचर के हैं. परंतु जो 8th कंपाउंड का एग्जाम्पल हम यदि लेते हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि एक बेंजीन रिंग का फ्यूजन हो गया. तो ये कैसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, बेंजोफ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया. तो वहां पर तो डीलोकलाइजेशन 6 मेंबर्ड रिंग में है, लेकिन जैसे जैसे हेट्रो एटम की उपस्थिति बढ़ती है वैसे वैसे उसका एरोमेटिक नेचर डिक्रीज होगा. वाई, बिकॉज हेट्रो एटम की अधिक उपस्थिति जो है डीलोकलाइजेशन के बजाय लोकलाइज कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि एरोमेटिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगी. अब जो 8th एग्जाम्पल है इसमें यहाँ फ्यूजन ऑफ बेंजीन रिंग टू द 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग causes further reduction in the aromatic character. क्यों, because of the partial localization of pi electrons. अब ये जो बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड है इसको हम बेंजीन से कंपेयर ना करके किससे कंपेयर कर रहे हैं, नैफ्थलीन से कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो हम इसका एरोमेटिक कैरेक्टर है ये किसके रेफरेंस को लेते हुए करेंगे, नैफ्थलीन को लेते हुए करेंगे. जो अबव एग्जांपल्स लिए हैं हमने वहाँ पर जो हम एरोमेटिक कैरेक्टर है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, बेंजीन से कंपेयर कर रहे हैं. तो बेंजोफ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो एरोमेटिक कैरेक्टर का डिक्रीज हुआ है वो भी किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द
पार्शियल लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हमने किससे कंपेयर किया है? हमने नैफ्थलीन से कंपेयर किया है। Now we come to the 5-membered aromatic heterocyclic compounds. In 5-membered heterocyclic compounds such as pyrrole, furan, thiophene, the unshared electron pair of heteroatom, यहाँ पर जो unshared electron pair है heteroatom पर, ये किस में involve होगा? Cyclic pi molecular orbitals में. In these heterocyclic compounds, because of cyclic delocalization of pi electrons, the carbon-carbon bond lengths show little alternation. तो यहाँ पर क्या है कि जो 5-membered rings हैं इसमें localization अधिक बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो cyclic pi molecular orbitals है यहाँ पर bond alternation भी ये show करेगा। तो बॉन्ड ऑल्टरनेशन का मतलब क्या है कि ज़्यादा कैरेक्टर कैसा हो गया है? सिंगल और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर हो गया है इंस्टेड ऑफ इन बिटवीन कैरेक्टर एज सीन इन केस ऑफ बेंजीन, सिंस डिफरेंट हेटेरोएटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब 5-membered के केस में हम विशेष रूप से यहाँ पर यदि अलग अलग हेटेरोएटम कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और जो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर इन तीनों को कंपेयर करें यदि तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तीनों ही एटम्स में। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है और सल्फर की उपस्थिति है। सिंस द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द हेटेरोएटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ दीज 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किस पे डिपेंड कर रही है? अवेलेबिलिटी ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द हेटेरोएटम, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग एटम्स अलग अलग अवेलेबिलिटी शो करेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। देयरफॉर द डिग्री ऑफ बॉन्ड लोकलाइजेशन किस पर निर्भर कर रही है? हेटेरोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे निर्भर कर रही है। अब तीनों एग्जाम्पल्स में यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करते हैं तो सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक है और सल्फर से अधिक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? These compounds, heterocyclic compounds, show appreciable degree of bond localization. The observed bond length values in oxygen-containing heterocyclic compounds differ from those of pure single and double bond length values. तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन कंटेनिंग हो चाहे नाइट्रोजन कंटेनिंग हो या सल्फर कंटेनिंग हो, उनकी वैल्यूज़ जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज़ है वो प्योर सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज से अलग होंगी और उसमें भी स्पेशली ऑक्सीजन का बॉन्ड लोकलाइजेशन ज़्यादा है। वाई? बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड इन कंपैरिजन टू सल्फर। तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि मोनोसाइक्लिक रिंग्स हैं 5-membered और उनमें क्या है कि हमने अलग अलग एटम्स को लेके हमने उनकी बॉन्ड लेंथ वैल्यूज दी हुई है। Hence, the degree of aromatic character, that is aromaticity, in case of 5-membered heterocyclic compounds can be written as sulfur heterocyclic compounds are more aromatic in nature when compared to nitrogen and compared to oxygen. Sulfur वाले सबसे ज़्यादा aromatic होंगे when compared to nitrogen और फिर उसके बाद oxygen. This can also be explained on the basis ऑफ बॉन्ड ऑल्टरनेशन वैल्यू। यदि हम बॉन्ड ऑल्टरनेशन वैल्यू निकालें तो उसके बेसिस पे भी एक्सप्लेन हो सकता है। और बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशियो हम कैसे निकाल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ कार्बन एटम नंबर 2 3 डिवाइडेड बाय कार्बन एटम नंबर 3 4। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशियो है वो हमारी थायोफीन, पायरॉल और फ्यूरॉन में जो है इस तरह से वैल्यू आती है 0.964, 0.964 एंड 0.95। तो एरोमेटिसिटी ऑर्डर जो है वो थायोफीन की पायरॉल से अधिक है, पायरॉल की फ्यूरान से अधिक है। तो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशियो नियरिंग टू 1 ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर मोर
एज वेल एज द ऑल्टरनेशन, बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशियो, दोनों को मिला के यदि हम स्टडी करते हैं तो जो एरोमेटिक कैरेक्टर है थायोफीन का पायरॉल से अधिक है, पायरॉल का फ्यूरान से अधिक है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑल्टरनेशन रेशियो नियरिंग टू 1 इंडिकेट्स द एरोमेटिक कैरेक्टर। अब हम यहाँ पर फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ले रहे हैं, यानी फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसके साथ है फ्यूजन, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक का बेंजीन के साथ फ्यूजन है। Fused heterocyclic compound have more bond localization as compared to the monocyclic compounds. Two bicyclic 5-membered heterocyclic compound show reduced aromatic character and have high degree of bond alternation. Example is indole in which bond alternation is shown. अब जो ऊपर के हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं और जो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली एक और डिफरेंस नोटिसेबल है। वहाँ पर जो फ्यूजन है वो 5 मेंबर्ड रिंग जब बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज हो रही है तो जो फ्यूजन पॉइंट है उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर जो हम फ्यूजन दिखा रहे हैं इन 3 एग्जाम्पल्स में, जिसमें हमारे पास आइसोइंडोल, बेंजोफ्यूरॉन, बेंजोथायोफीन है, यहाँ पर जो फ्यूजन है उन कार्बन एटम्स के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो वो कंपाउंड्स जिनमें कि डबल बॉन्ड पे फ्यूजन है, वो कंपाउंड्स जिनमें कि सिंगल बॉन्ड पे फ्यूजन है, दोनों के कैरेक्टर्स भी अलग अलग होंगे। फ्यूजन ऑफ बेंजीन रिंग अक्रॉस द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रिजल्ट्स इन फर्दर रिडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। जो अबव एग्जाम्पल्स हैं उनमें भी एरोमेटिसिटी का कैरेक्टर रिड्यूस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि फ्यूजन किसके साथ हुआ? बेंजीन के साथ हुआ, और हेट्रो एटम पर लोकलाइजेशन जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ। मोर ओवर यहाँ पर जो फ्यूजन है इन 3 एग्जाम्पल्स के केस में, बेंजीन रिंग का फ्यूजन उस पर्टिकुलर पोजीशन में है जहाँ पर कि सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ है, तो यहाँ पर फर्दर रिडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी हुआ है, जबकि वहाँ पर फ्यूजन जो है सिंगल बॉन्ड के उसमें है। So the aromatic character of heterocyclic compounds thus can be shown in terms of aromaticity indices also. So in which aromatic character या aromaticity of heterocyclic compound can be expressed as a percentage that of benzene. तो benzene के comparison में यदि benzene का aromatic index हम 100 लेते हुए show करते हैं, तो यहाँ पर जो aromatic character है अलग अलग compounds का अलग अलग दिया गया है। तो basically जो लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स है वो एरोमेटिक कैरेक्टर को रिड्यूस कर रहा है। तो यदि हम 6 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड पे आते हैं तो 6 मेंबर्ड्स आर मोर एरोमेटिक इन नेचर व्हेन कंपेयर टू द 5 मेंबर्ड। लाइकवाइज अलग अलग कैरेक्टर्स, बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज, बॉन्ड ऑल्टरनेशन की वैल्यू, और इन सब चीज़ों को मिलाकर हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से या किस स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया से हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो एरोमेटिक कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोलेबल हैं, या वो किसकी वजह से उन पे फ़र्क पड़ेगा, उनके एरोमेटिक कैरेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो हमने आज बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।